Hello everyone. In this video we'll study about TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle, जिसको commonly Krebs cycle भी बोला जाता है या citric acid cycle भी बोला जाता है। 1953 में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में मिला था हैंस एडोल्फ क्रेब को टू डिस्कवर दिस साइकिल। द क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, जस्ट बिकॉज सिट्रिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिट्रेट फॉर्म होता है, और ट्राइकार्बोक्सिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं सिट्रिक एसिड में, विच इज़ द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म। सो इसको क्रेब साइकिल, TCA या सिट्रिक एसिड साइकिल कुछ भी बोल सकते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, एंड इट इज़ द मेन सोर्स फॉर एनर्जी ऑफ सेल्स। तो बेसिकली एनर्जी ऑफ सेल्स जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में फर्दर ब्रेक डाउन होता है व्हेन इट पार्टिसिपेट इनटू TCA साइकिल। सो TCA साइकिल का मेन काम है एनर्जी रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ NADH, FAD एंड ATP. It is a series of chemical reaction to release stored energy through oxidation of acetyl coenzyme A derived from carbohydrate, fats and proteins. तो carbohydrate, fats और protein से जो acetyl coenzyme A बन रहे हैं, जैसे carbohydrate का commonly सबको पता है कि glycolysis होता है, glycolysis के बाद pyruvate बनता है, और pyruvate break down होके फिर acetyl coenzyme A बनाते हैं. Further, it enters into TCA cycle. Pyruvate on oxidative decarboxylation forms acetyl coenzyme A, which enters TCA cycle. Other fuel molecules such as amino acid and fatty acid can also enter TCA cycle through acetyl coenzyme A. In TCA cycle, the 2-carbon acetyl group of acetyl coenzyme A is oxidized to 2 molecules of CO2. So यहाँ पे जो acetyl coenzyme A है वो oxidize होता है, breakdown होता है, दोनों CO2 molecules release हो जाते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाता है कोएंजाइम्स NAD+ और FAD में, विच रिजल्ट्स एज द एनर्जी सोर्स लेटर ऑन. In this diagram you can see कि acetyl coenzyme A is a precursor of TCA cycle, and this acetyl coenzyme A is formed in 3 processes. ये fatty acid oxidation में भी form होता है, amino acid catabolism में भी form होता है, और polysaccharide that means carbohydrate के breakdown में भी form होता है. तो जितने भी हम nutrient mainly carbohydrate, proteins और fat जो हम consume कर रहे हैं, तीनों के catabolism में acetyl coenzyme A form हो रहा है, which later enter TCA cycle to release energy in the form of NADH, FAD and ATP. So this is the Krebs cycle. एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस होता है, कंबाइन होता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, और फॉर्म करता है सिट्रेट बनाता है, विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसीलिए बोलते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इज सिट्रेट, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज सिट्रेट सिंथेज. लेटर सिट्रेट बनाता है आइसोसिट्रेट with the help of enzyme aconitase. Isocitrate then converts to alpha ketoglutarate with the enzyme isocitrate dehydrogenase. Then succinyl coenzyme form होता है, फिर succinate, fumarate and malate. Malate later on converts into oxaloacetate, and this is how the cycle continues. अगर हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें, so you can see first acetyl coenzyme कंडेंस करता है, कंबाइन करता है ऑक्सैलोएसीटेट के साथ, और बनाता है सिट्रेट with the help. This is a condensation reaction which takes place with the help of enzyme citrate synthase. Then citrates undergo dehydration, and dehydration के बाद वो बनाता है cis aconitate, which later on undergoes hydration, and these two reactions are considered as one reaction क्योंकि cis aconitate एक short lived intermediate है. So basically हम ये भी कह सकते हैं कि citrate से form हो रहा है isocitrate with the help of enzyme aconitase. Once this isocitrate is formed, it later on undergoes oxidative decarboxylation. That means यहाँ पे decarboxylation भी हो रही है और isocitrate की oxidation भी हो रही है. So 2 steps are taking place. This is oxidative decarboxylation reaction which takes place with the help of enzyme isocitrate dehydrogenase, and the compound formed after it is alpha ketoglutarate. यहाँ पे एक NADH भी form हो रहा है. Then again this alpha ketoglutarate again undergoes oxidative decarboxylation. Again यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो रहा है, प्लस अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो ऑक्सीडाइज होके बना रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम में. NADH भी फॉर्म हो रहा है और CO2 भी रिलीज हो रहा है.
Then this succinyl coenzyme is so formed undergoes substrate level phosphorylation and forms succinate. Succinate बनता है with the help of enzyme succinyl coenzyme A. यहाँ पे coenzyme A release हो जाता है plus GTP form होता है which GTP later on changes to GDP and forms ATP. So this is known as substrate level phosphorylation. Then the succinate so form undergoes dehydrogenation. उसकी dehydrogenation हो रही है, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है with the help of enzyme succinate dehydrogenase. यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है FADH2. तो हमने ये these steps are very important. We have to remember that where NADH are formed and where FADH is formed. तो NADH दो स्टेप्स में फॉर्म हुआ था. एक स्टेप जहाँ पे आइसोसिट्रेट चेंज होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और सेकंड स्टेप जब अल्फा कीटोग्लूटारेट चेंज होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में. Later on, when this succinate changes to fumarate, FADH is formed. After fumarate, fumarate undergoes hydration with the help of enzyme fumarase and form malate. Malate again undergoes dehydrogenation with the help of enzyme malate dehydrogenase and form oxaloacetate. Now this oxaloacetate so formed will again combine with acetyl coenzyme A and the cycle will get repeated. This cycle contains 8 main steps. First, condensation, then dehydration and hydration, then oxidative decarboxylation, again oxidative decarboxylation, then substrate level phosphorylation, then dehydrogenation, hydration and dehydrogenation. जो important है वो याद रखना. Obviously cycle के सारे compounds को हमें order wise याद रखना है, but the thing which is very very important is NADH कहाँ पे form हो रहा है, FAD कहाँ पे form हो रहा है और GTP जिसकी वजह से लेटर ऑन ATP बन रहा है. सो ये जो एनर्जीज हैं ये कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रही हैं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So let us take a look at the steps again. Acetyl coenzyme A reacts with a 4-carbon oxaloacetate to form 6-carbon molecule of citrate, and this takes place with the help of enzyme citrate synthetase. Isomerization of citric acid by the enzyme aconitase forms isocitrate. Dehydration of isocitrate with the help of enzyme isocitrate dehydrogenase produces alpha ketoglutarate. सो फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन हुआ ऑक्सैलोएसिटेट के साथ, बना सिट्रेट. सिट्रेट की आइसोमराइजेशन हुई तो बना आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट फर्दर अंडरगो करता है डिहाइड्रेशन या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और फॉर्म करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट. हेयर 1 NADH इज फॉर्म. अगेन दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन और वी कैन से ऑक्सीडेटिव decarboxylation to form succinyl coenzyme A. This succinyl coenzyme A is formed with the help of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase, and here the electron acceptor is NAD+ क्योंकि NADH form होता है. The enzyme succinate thiokinase catalyze the formation of GTP at the expense of thioester bond. तो देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनेट बनता है तो रिलीज होता है GTP. दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सक्सिनेट इज डीहाइड्रोजनेटेड टू फ्यूमरेट बाय द एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस. कोएंजाइम FAD acts as hydrogen acceptor. Hydration of fumarate से बनता है malate with the help of enzyme fumarase. Finally oxaloacetate में convert हो जाता है malate again by dehydrogenation with the help of enzyme malate dehydrogenase. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप्स के साथ साथ डायग्राम्स को याद रखो. यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम, चाहे आप डिफ़िकल्ट वाली बनाना चाहो या आप सिंपल वाली बनाना चाहो. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको ये केमिकल फार्मूला शो करने हो. केमिकल फार्मूला शो करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द रिएक्शंस एंड नेम ऑफ द एंजाइम्स. दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड इन द डायग्राम. नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमने पढ़ा था कि TCA साइकिल का मेन फंक्शन क्या है. TCA साइकिल क्यों हो रही है? एनर्जी रिलीज़ करने के लिए. वी हैव सीन कि जब एक एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन करता है CO2 रिलीज़ करने के लिए तो 2 NADH फॉर्म होते हैं, एक FAD फॉर्म होता है और एक ATP फॉर्म होता है. सो जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज होता है, NADH फॉर्म होता है. नाउ दिस 1 NADH कैन यील्ड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. अगेन जब अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, अगेन एक NADH रिलीज होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 ATP. सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है जिससे GTP बनता है विच रिजल्ट्स इन 1 ATP मॉलिक्यूल. सक्सिनेट जब कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में तो FAD+ जो है वो
करता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह, FADH2 फॉर्म होता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में और यहाँ पे भी अगेन फॉर्म होता है NADH। सो this NADH again is equal to 3 ATP. So there are 3 molecules of NADH, 3 NADH फॉर्म हो रही है एक TCA साइकिल में और एक FADH2 फॉर्म हो रहा है और एक ATP फॉर्म हो रहा है। एज अ रिजल्ट वी कैन काउंट कि टोटल 12 ATPs आर फॉर्म्ड इन वन साइकिल विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। बट जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अगर हम ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में देखें हम इस पूरे वैल्यू को इंटू 2 कर देंगे। So because there are 2 isocitrate molecules, 2 alpha ketoglutarate, 2 succinyl coenzyme, 2 succinate and 2 malate, तो ये सारे numbers डबल हो जाएंगे। That means 1 glucose molecules when oxidatively break down तो वो 2 pyruvate molecules बनाता है which gives 2 acetyl coenzyme A, and as a result in TCA cycle 24 ATPs are formed. सो टिल हेयर वॉज द बेसिक एंड द मिनिमम थिंग जो आपको TCA साइकिल में मेंशन करनी होती है। आपको TCA साइकिल का अगर क्वेश्चन आता है यू हैव टू ड्रॉ द साइकिल, यू हैव टू मेंशन देम इन स्टेप्स। आपको एंजाइम के नाम, रिएक्शन के नाम और NADH, FADH, CO2 कहाँ रिलीज हो रहा है, ATP कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपको इसका एनर्जी यील्ड लिखना इंपॉर्टेंट है कि एक TCA साइकिल से या एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने पे एनर्जी यील्ड कितना हो रहा है।